last lab we were discussing the design and drawing of the eccentrically loaded riveted joint. So eccentrically loaded riveted joint means the line of action of the force is not passing through the center of gravity of the rivet system. So G is the center of gravity. Suppose this is a point. If line of action of the force is not passing through the center of gravity, then this is the force P, which is at a particular distance of, let eccentricity E. So perpendicular distance from the center of gravity to the line of action of the force is known as eccentricity. So E is the eccentricity here. So when this force passes through the center of gravity, take another example. Let this is a force Q over here. This is force Q. It is passing through the center of gravity. So in this case, the eccentricity is 0. So when simple definition, eccentrically loaded riveted joint means the line of action of the force not passing through the center of gravity. So we have taken an example, a problem. So this was the problem. In this problem, a bracket. So this is a bracket attached to a vertical column. So this is a vertical column. So bracket is attached with the vertical column by means of 4 identical rivets. So this is rivet number 1, rivet number 2, 3 and 4. So there are 4 rivets. Okay. Subjected to an eccentric force of 25 kilonewton. So this is the force. Force is given here 25 kilonewton. So you see here the line of action of the force is this one. This is the line of action of the force. You can extend it. So this is the line of action of the force. And your center of gravity lies here. This is the center of gravity. You can calculate center of gravity by finding x bar and y bar mathematically. X bar is given by sigma AIXI divided by sigma AI. Or you can say A1x1 plus A2x2 dot 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 A4x4, because there are 4 rivets. So this series will go to A4x4 divided by A1 plus A2 plus A3 plus A. And similarly, y bar can be written as sigma AIYI divided by sigma AI, where I is I changing from 1 to 4. I equal to 1 to 4. You can write in this way, I equal to 1 to 4, because there are 4 rivets. So these are the usual equations that can be used to find the center of gravity. Because this system is very simple system, so you can find the center of gravity just by the visualization. You do not need to calculate x bar, y bar. You just say that there are 4 rivets, they are symmetrical, every distance is 100. That's why the center of gravity will lie here. So the distance of G from the rivet number 4 will be how much? 100 plus half of 100. So this distance is 150. The center of gravity can be found in this simple example just by the visualization. So y bar is 50 and x bar is 0. X bar is 0, y bar is 50, y bar is the vertical distance. So vertical distance is 150. It is not 50, it is 150. If this is my origin, if 4th rivet is my origin, then x bar is 0, y bar is 150. If rivet number 3 is my origin, for example, if rivet 3 is my origin, then in that case x bar and y bar will be different. X bar will be again 0, but y bar will be how much? It is hello sir. In case of rivet 3 is the origin, then this will be only 50. Sir? If your reference point changes, your coordinates will be changes for the center of gravity. Sir?
पूछना चाह रहे थे क्या? हाँ बोलिए। सर ये तो आपने सर करा दिया था आधा। हाँ ये मैंने करा दिया, बस मैं जस्ट रिकैप देके आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको अभी प्रूफ नहीं किया ना। मैंने इसको ये आपको ये बता दिया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई n। कांस्टेंट की वैल्यू तक निकलवा दिया था आपने। हाँ कांस्टेंट की वैल्यू तक निकलवा दिया था, तो जस्ट मैं वो कर रहा हूँ उसका, है ना। तो पहला स्टेप क्या होता है, टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो पहला स्टेप दैट वी हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट लैब, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर, दैट वी हैव फाउंड इन द लास्ट लैब। सेकंड केस इज कैलकुलेट प्राइमरी शियर फोर्सेस, दैट वी आल्सो कंप्लीटेड, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। So primary shear force P1 dash is the primary shear force on rivet number 1, है ना। rivet number 2 P2 dash, P3 dash, P4 dash, ये भी हम फाइंड कर चुके हैं, and it is P by N. And in our case, what is P? The value of P is given 25 kilonewton. So I can write 25 into 1000, और kilonewton में चलने देते हैं, 25 divided by 4, so it is 6.25 kilonewton. So this step also we have completed in the previous lab. Now we are moving to step 3. Calculate the secondary shear forces. So secondary shear forces are given by P1 double dash, P2 double dash, P3 double dash, and P4 double dash. So for this we have derived a formula for the constant. The constant formula is given by m upon R1 square plus R2 square plus R3 square plus R4 square. Now that formula we have derived in the last lab. And what is the value of constant? है ना, तो constant की वैल्यू लास्ट लैब में हमारी कितनी आई थी, जरा बता दीजिए। सारांश प्रधान आपके पास नोटेड है या सत्य प्रकाश? सर मेरे पास है। हाँ बताइए कितनी आई थी? 0.05। यस सर 0.05। 0.05, और इसकी यूनिट क्या थी? किलो न्यूटन पर एन। यस सर। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। R1 R2 R3 R4 क्या है, डिस्टेंसेस हैं, है ना। रिवेट नंबर 1 की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रिवेट 2 की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये सारी चीजें हमने निकाल रखी थी, R1 R2 R3 R4, और हमने कांस्टेंट निकाल लिया था। कांस्टेंट के बाद P1 डबल डैश को भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, CR1 से, इसको CR2 से, इसको CR3 से, और इसको CR4 से। इनकी वैल्यूज बता दीजिए क्या आई थी। P1 डबल डैश कितना आया था? C मतलब 0.05 इंटू R1, है ना। तो बताइए, अभी जिन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू बताई है वही मुझे बता दें कि P1 डबल डैश हमारा कितना आया। Because this step also we have completed in the last lab. So C is 0.05, and what is R1? R1 is 150. यस सर। तो कितना हो गया? 15.5। 7.5। तो 7.5 किलो न्यूटन वाज P1 डैश। P4 डबल डैश भी इतना ही था। यस सर। और ये बीच वाले कितने थे? 2.5। 2.5 किलो न्यूटन, और ये भी 2.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये प्राइमरी आप देख रहे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी शियर फोर्स दे आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल, बट प्राइमरी शियर फोर्स आप देख रहे हैं दे आर इक्वल ऑन ऑल द रिवेट्स। ठीक है, प्राइमरी शियर फोर्सेस आर इक्वल बट सेकेंडरी शियर फोर्सेस आर नॉट इक्वल। नाउ स्टेप नंबर 4. Step number 4 is calculate the resultant shear forces. Calculate the resultant shear forces. तो इसके लिए हमको क्या है, सबसे पहले तो हमें FBD ड्रॉ करना चाहिए, और FBD भी हम शायद लास्ट क्लास में कुछ हद तक बना चुके थे। तो अभी हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट शेयर निकालना है। रिजल्टेंट शेयर, प्राइमरी शेयर हमारे पास है, रिजल्टेंट शेयर हमारे पास है ना। मान लीजिए मैं रिवेट नंबर 1 की बात करूं, दिस इज द रिवेट नंबर 1, है ना। अब इस रिवेट नंबर 1 पर, दिस इज रिवेट नंबर 2, दिस इज रिवेट 3, दिस इज रिवेट 4, I am having the 4 rivets. This is the center of gravity. Primary shear force is P1 dash. So what is the value of P1 dash? P1 dash is 6.25 kilonewton. Now, second primary shear force on the second rivet, it's same, P2 dash, again 6.25.
P3 dash again 6.25 because primary shear forces are equal on all the rivets. So P4 dash is also 6.25 है ना. तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है I have to show all the forces. Free body diagram is a diagram in which all the forces acting on the rivet system are shown. तो देखिए मैंने प्राइमरी फोर्सेस आपको शो कर दिए. अब मुझे सेकेंडरी शियर फोर्स शो करना है. तो सेकेंडरी शियर फोर्स के लिए क्या करना है, ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक लाइन ड्रॉ करिए रिवेट नंबर 1 के सेंटर की तरफ, है ना. इस वाले पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है. उसी तरह इस पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, इस पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, इस पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है. सेकेंडरी शियर फोर्स दिखाने के लिए सीधा सिंपल तरीका है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिवेट के सेंटर से जोड़ दो, जो भी लाइन आएगी उस लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है. तो देखो रिवेट नंबर 1, रिवेट नंबर 2, रिवेट नंबर 3, रिवेट नंबर 4. मैंने क्या किया, जी को रिवेट के सेंटर से ज्वाइन किया तो मुझे एक वर्टिकल लाइन मिली, उसका परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई. तो ये लाइन ही मेरा सेकेंडरी शियर फोर्स है ना. अब मुझे एरो लगाना है इस लाइन पर. तो एरो या तो राइट की तरफ होगा या लेफ्ट की तरफ होगा, दो ही साइन हो सकते हैं. किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर एरो या तो राइट की तरफ होगा या लेफ्ट की तरफ होगा. तो अब मुझे ये देखना है कि यदि मुझे क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाना है तो मेरा एरो राइट की तरफ होगा, है ना. इन दिस प्रॉब्लम देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना. क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है. ये देखिए ये रिवेट का सेंटर है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है. तो इस फोर्स की एरो से इस रिवेट पे कैसा मूवमेंट बन रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है. सो दैट्स व्हाई अब हम जितने भी एरो मार्क करेंगे अपने फ्री बॉडी डायग्राम में वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम मार्क करेंगे. ये जी पॉइंट पर इस एरो की वजह से कैसा मूवमेंट आना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए. तो ये मेरा P1 डबल डैश हो गया और P1 डबल डैश की वैल्यू मुझे आपने बताई है 7.5 किलो न्यूटन. तो देखिए रिवेट नंबर 1 पर 6.25 का प्राइमरी शियर है, 7.5 का सेकेंडरी शियर है ना. इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है. एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो जब दो फोर्सों के बीच में एंगल 90 होता है तो उनका रिजल्टेंट आप कैसे निकालते थे, P1 डैश स्क्वायर प्लस P1 डबल डैश स्क्वायर, ऐसे तो निकालते थे. दो यदि कोई भी दो फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ना, कि कौन सा फॉर्मूला होता था, √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, है ना. थीटा इज 90 डिग्री, सो cos थीटा cos 90 इज 0. सो दैट्स व्हाई ओनली P1 डैश स्क्वायर प्लस P1 डबल डैश स्क्वायर विल बी द रिजल्टेंट. और ये रिजल्टेंट कौन से रिवेट पर है, रिवेट नंबर 1. सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट R1, ठीक है. आई एम राइटिंग इट R1. सो दिस इज गिवन बाय 6.25 होल स्क्वायर प्लस 7.5 होल स्क्वायर. सॉल्व कर दीजिए जरा, बताइए कितना आंसर आ रहा है. हाँ जी, कैलकुलेटर उठाइए और आंसर बताइए. 6.25 होल स्क्वायर प्लस 7.5 होल स्क्वायर, मैं भी कर ले रहा हूँ, आप भी करिए, प्लस 7.5 9.76 वेरी गुड 9.76 किलो न्यूटन, है ना. यूनिट किलो न्यूटन चल रही है हमारी. यूनिट का ध्यान रखना है आपको. यदि आपने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया है तो आपके आंसर्स न्यूटन में आएंगे, अन्यथा किलो न्यूटन है. सो रिवेट नंबर 1 पर जो रिजल्टेंट शियर है वो 9.76 किलो न्यूटन का है, ठीक है. सिमिलरली अब रिवेट नंबर 2 पे आते हैं. तो रिवेट नंबर 2 पर देखें कि प्राइमरी शियर कितना है, 6.25 का है. अब सेकेंडरी शियर उस पर कितना है, P2 डबल डैश हमने कैलकुलेट किया था 2.5 किलो न्यूटन. तो इसका जो रिजल्टेंट है R2 विल बी गिवन बाय 6.25 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर. यही तो आएगा. सिमिलर फैशन जैसे हमने रिवेट 1 पे रिजल्टेंट निकाला है वैसे हमने रिवेट 2 पर रिजल्टेंट निकाल दिया. इसको जरा सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है, 6.73 किलो न्यूटन. 6.73 किलो न्यूटन, ठीक है. तो देखिए रिवेट 1 पे भी हमने निकाल लिया, रिवेट 2 पे भी हमने निकाल लिया, है ना.
अब हम रिवेट नंबर 3 और रिवेट नंबर 4 पर कैलकुलेट करते हैं। तो अब बात आती है रिवेट नंबर 3 की। तो रिवेट नंबर 3 पर जो रिजल्टेंट होगा उसको हम R3 बोलेंगे। रिवेट नंबर 4 पे जो है उसे R4 कहेंगे। ठीक है, तो R3 के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। तो R3 मतलब रिवेट नंबर 3। ठीक है, तो रिवेट नंबर 3 जरा देखिए आप, रिवेट नंबर 3 जो है वो ये है रिवेट नंबर 3। दिस इज द रिवेट नंबर 3, है ना। अब इस रिवेट पे आप देखें तो प्राइमरी शेयर तो 6.25 है। अब सेकेंडरी शेयर मतलब इस लाइन पे ही मुझे एरो लगाना है। तो इस जी पॉइंट के लिए यदि मुझे एरो लगाना है और क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाना है तो अब मेरा एरो किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। यहां पर मुझे यदि क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाना है, जो पॉइंट ऊपर लाई कर रहे हैं, जी पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो आपके एरो राइट साइड आ रहे हैं, और जो पॉइंट जी के नीचे लाई कर रहे हैं उनके एरो किधर आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे, तभी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा। तो अब देखिए इसकी डायरेक्शन इधर हो गई और ये P3 डबल डैश है और इसकी वैल्यू कितनी है, 2.5 किलो न्यूटन हमने कैलकुलेट की है स्टेप 2 में, स्टेप 3 में। तो अब इन दोनों के बीच एंगल कितना है, दोबारा से 90 डिग्री का एंगल है ना। 90 डिग्री एंगल पे जो रिजल्टेंट आता है तो वही आएगा, 6.25 होल स्क्वायर प्लस 2.5 होल स्क्वायर, तो सेम वैल्यू मिल जाएगी। R2 की वैल्यू यदि 6.73 है तो R3 भी आपका उतना ही आ जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यू जो है आपस में क्या है, इक्वल है। सिमिलरली R4 को आप निकाल सकते हैं। R4 का एरो भी आप देखें लेफ्ट साइड में ही आएगा, और इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R4 P4 डबल डैश, P4 डबल डैश हमारे क्वेश्चन में 7.5 ही आया था, तो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा 6.25 यानी कि प्राइमरी शेयर प्लस 7.5 यानी कि सेकेंडरी शेयर। तो जितना R1 आया था उतना ही R4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट शेयर मिल गया। अब इन चारों फिगर वैल्यूज को चेक करिए। पहली वैल्यू कितनी है, 9.76, है ना। दिस इज फर्स्ट वैल्यू R1, है ना। तो देखो R1 मतलब 9.76, R2 मतलब 6.73। बताओ कौन सा ज्यादा है, R1 इज मोर देन R2, है ना। तो इसका मतलब रिवेट नंबर 1 पे ज्यादा फोर्स आ रहा है, ज्यादा लोड आ रहा है ना। तो फेल्योर के चांस रिवेट नंबर 1 के हैं या रिवेट नंबर 2 के हैं। जिस रिवेट पे ज्यादा लोड आ रहा है उसके ही फेल्योर होने के चांसेस R1। हाँ, उसी के फेल्योर होने के चांसेस हैं। तो जिस रिवेट पर सबसे ज्यादा लोड आता है उस रिवेट को हम कहते हैं हेवीली लोडेड रिवेट। उसको हम क्या कहते हैं, हेवीली लोडेड रिवेट। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर ये पता करना है कि कौन सा रिवेट हेवीली लोडेड है। तो देखो R1 और R2 में देखा जाए तो R1 हेवीली लोडेड है, R3 भी 6.73, ये भी वैल्यू कम है 9.76 से। R4 के बारे में देखें तो 9.76, R4 भी 9.76 है, R1 भी 9.76 है, बोथ आर इक्वल। It means R1 and R4, rivet 1 and rivet 4, both are heavily loaded, both are equally heavily loaded, है ना। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में R1 और R4 यानी कि रिवेट नंबर 1 और रिवेट नंबर 4 बोथ आर इक्वली हेवीली लोडेड। तो अब हमारे लिए डिजाइन क्राइटेरिया वही होता है जो हेवीली लोडेड होता है ना। डिजाइन के लिए वही रिवेट इंपॉर्टेंट है। हम कौन से रिवेट को डिजाइन करें, हम उसी रिवेट को डिजाइन करें जो हेवीली लोडेड है, जहां पर फेल्योर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो अब बोथ इक्वली हेवीली लोडेड हैं, तो या तो हम रिवेट 1 को डिजाइन कर लें या फिर हम रिवेट 4 को डिजाइन कर लें। ठीक है, तो रिवेट 1 इज हेवीली लोडेड। तो स्टेप 4 से जो आपका सारांश निकल के आएगा, मतलब जो कंक्लूजन निकल के आएगा, वो ये निकल के आएगा कि कौन सा रिवेट हेवीली लोडेड है ना। और ये बात हमें कैसे पता चलती है, रिजल्टेंट शियर से पता चलती है। जिस रिवेट पर रिजल्टेंट शियर सबसे ज्यादा होगा वही रिवेट हेवीली लोडेड होगा। तो रिवेट 1 इज हेवीली लोडेड। तो मुझे यहाँ पे एक लिखना चाहिए इस एक्सरसाइज के बाद, जो मेरा कंक्लूजन है, आई शुड राइट, इन एग्जाम्स में भी लिखना चाहिए, रिवेट 1 and 4 आर इक्वली हेवीली लोडेड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है लेकिन, है ना। मतलब ये आपकी फाइंडिंग्स है स्टेप नंबर 4 के लिए। अब स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में क्या लिखा है, फाइंड द हेवीली लोडेड रिवेट। ये तो हम पता कर चुके। तो कौन सा रिवेट हेवीली लोडेड है, रिवेट 1 इज हेवीली लोडेड, रिवेट 4 भी है। चलो दोनों में से कोई भी एक लेके चलते हैं। तो मान लीजिए हम रिवेट 1 को लेके चल रहे हैं।
ठीक है। अब इस रिवेट का एरिया क्या होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। एरिया क्या होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अब ये देखो क्या ये सिंगल शियर है कि डबल शियर है, डायग्राम को देखो। इसेंट्रिकली लोडेड में इस डायग्राम को देख के बताइए कि क्या ये सिंगल शियर है या डबल शियर है। बताओ इसमें ओवरलैपिंग है कि नहीं है। ये लैप जॉइंट है कि बट जॉइंट है ना, ये लैप जॉइंट है। देखो ये लैप जॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ब्रैकेट है और एक कॉलम है। तो मैंने आपको बताया है कि ये तो कॉलम है आपका, तो ये वाला पार्ट तो कॉलम है ना, दिस इज कॉलम, और ये पूरा आपका ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट और कॉलम में ये आपकी ओवरलैपिंग है, ये आपकी ओवरलैपिंग है ना। कॉलम की जो लेंथ है वही आपकी ओवरलैपिंग है। तो एक तरह से क्या है, लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट में भी ये सेंट्रिकली लोडेड है ना, लैप जॉइंट में भी ये सेंट्रिकली लोडेड है। और लैप जॉइंट जो होते हैं वो तो सिंगल शियर में ही होते हैं, लैप जॉइंट में डबल शियर तो होती ही नहीं है। डबल शियर तो बट जॉइंट में होती है, क्योंकि वहां पे 2 कवर प्लेट आ जाती है तो डबल शियर हो जाता है, 1 कवर प्लेट आती है तो सिंगल शियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन लैप जॉइंट में तो प्लेट ही 2 होती है, कोई कवर प्लेट होती ही नहीं है ना। जब 2 ही प्लेट होती है तो उन दोनों के बीच में एक ही कॉमन एरिया आता है ना। जैसे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तो ये वाला पार्ट ओवरलैडेड होता है। तो इस वाले ओवरलैपिंग इस पोर्शन पे यदि हमने कोई रिवेट लगाया है यहाँ, तो इन रिवेट्स में सिंगल शियर ही होता है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिए कि लैप जॉइंट है तो सिंगल शियर ही होगा, है ना। बट जॉइंट में दोनों हो सकता है, यदि 2 कवर प्लेट है तो डबल शियर, 1 कवर प्लेट है तो सिंगल शियर। तो अब हम आ जाते हैं, सिंगल शेयर है तो हमें कोई इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। तो हमारा एरिया कितना हो गया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, है ना। अब रिवेट किस फिनोमेना में है, शियर फिनोमेना में है। तो एरिया इनटू स्ट्रेस मैंने टाउ से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया इनटू स्ट्रेस क्या बन गया, फोर्स। लेट फोर्स इज पी, ठीक है, फोर्स इज पी। तो अब रिवेट नंबर 1 पे फोर्स कितना आ रहा है, R1। रिवेट नंबर 1 इज हेवीली लोडेड और उस पर कितना फोर्स आ रहा है, R1, रिजल्टेंट शियर ऑन द रिवेट नंबर 1। बस अब ये हमारी बेसिक इक्वेशन हो गई, ये हमारी स्ट्रेंथ इक्वेशन हो गई, है ना, स्ट्रेंथ इक्वेशन हो गई। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है हमारा, मतलब स्टेप 5 क्या कह रहा है, फाइंड द हेवीली लोडेड रिवेट। द हेवीली लोडेड रिवेट इज R1 एंड अप्लाई द स्ट्रेंथ इक्वेशन। तो ये स्ट्रेंथ इक्वेशन ही लिखी है मैंने, दिस इज द स्ट्रेंथ इक्वेशन टू कैलकुलेट द रिवेट डायमीटर। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 9.76 आई थी। देखो R1 हमारा आया था 9.76, बिल्कुल सही है। तो 9.76 ये किलो न्यूटन में है ना, किलो न्यूटन में। ध्यान रखना अब यूनिट ये किलो न्यूटन में है। पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी तो हमारे लिए अननोन है, हम डिजाइन कर रहे हैं रिवेट को। रिवेट को डिजाइन करने का मतलब है रिवेट का डायमीटर फाइंड करना, है ना। तो डी तो हमारे लिए अननोन वैल्यू है, सो इट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाउ। टाउ इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। तो ये शियर स्ट्रेंथ हमें क्वेश्चन में दी होगी, है ना। तो ये चलो चेक करें, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा से वापस। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन। क्या देखो, शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज गिवन 60 मेगापास्कल। तो बस टाउ की वैल्यू जो है वो कितनी है, 60 है। तो टाउ की जगह पे हम पुट कर देते हैं 60, है ना। तो यहाँ पे हमने 60 किया, लेकिन 60 मेगापास्कल है, मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखो टाउ को तो आप न्यूटन में रख रहे हैं, फोर्स को आप किलो न्यूटन में रख रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। यू हैव टू मेक द यूनिट कॉम्पेटिबिलिटी। तो यदि ये टाउ न्यूटन में है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, तो आपका फोर्स जो है, रिजल्टेंट शियर जो है, वो किस में होना चाहिए, वो भी न्यूटन में होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻³ तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या हुई, 9.76 into 10⁻³ equal to pi by 4 d square multiplied by 60. Now this is the right equation. ठीक है, सिंगल शियर है, कोई मुझे 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। एरिया इंटू स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स। अब इस पूरी इक्वेशन में आप देख रहे हैं कितने अननोन है, only d is the unknown, है ना, only d is the unknown. So just find the d, बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व कर दीजिए। 14.38 14.39 14.39 mm ये हमारा रिवेट आ गया। इसको राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लेट 15 mm। ये हो गया हमारा रिवेट का
डायमीटर। अब देखो, एक होता है रिवेट, एक होता है रिवेट होल, है ना। रिवेट होल के अंदर ही तो रिवेट इंसर्ट किया जाता है, तो रिवेट होल और रिवेट के बीच में कुछ क्लियरेंस होना जरूरी है। तो वो क्लियरेंस जनरली 1 से 2 मिलीमीटर के बीच में रखा जाता है, ठीक है। यदि रिवेट का डायमीटर 15 है तो रिवेट होल का डायमीटर डी डैश, है ना, डी डैश इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल, विल बी गिवन बाय डी प्लस 1 mm। 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, 1 से 2 के बीच में आप लेके क्लियरेंस ले सकते हैं। तो let d plus 1, so it is 15 plus 1, so it is 16 mm, करेक्ट। ये रिवेट होल का डायमीटर हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारा इसेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट डिजाइन हो गया, है ना। कितने स्टेप हैं? 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करो, दूसरा स्टेप प्राइमरी शियर फोर्स निकालो, तीसरा स्टेप सेकेंडरी शियर फोर्स निकालो, है ना। उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा, उसे ड्रॉ करो। उसके बाद रिजल्टेंट शेयर निकालो, स्टेप नंबर 4। और लास्ट स्टेप में जब ये पता लग जाए कि कौन सा रिवेट हैवीली लोडेड है, उस रिवेट पर स्ट्रेंथ इक्वेशन अप्लाई करो। स्ट्रेंथ इक्वेशन अप्लाई करने से आपका अननोन डायमीटर कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो एम था वो यही था, डिजाइन एंड ड्राइंग, है ना। हमारा एम क्या था? डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ द इसेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड। ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई आपकी डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिए, स्टेप 1 से स्टेप 5 के बीच में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ बोलिए। मैटलैब पे इसका क्या यूज है सर? अभी करते हैं तो मैटलैब में भी करेंगे, है ना। पहले ये बताइए कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है पूरा? यस सर, कंसेप्ट तो आ गया सर, है ना। 5 स्टेप हैं, बिल्कुल टिप्स पे रखिए। तो सर ये मैटलैब में पूरा स्टेप सॉल्व करेंगे ऐसे ही? अभी कर देंगे सब, मतलब बन जाएगा, इसका प्रोग्राम बना लेंगे। मैं भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको, है ना। तो कोई डाउट यहाँ पर 5वां स्टेप में किसी की भी, है ना। ये मतलब इस तरह का एसेंट्रिकली लोडेड पर कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर आता है, मतलब, है ना। प्रायोरिटी रहती है कि रिवेट में क्वेश्चन पूछना है तो कौन सा पूछना है, एसेंट्रिक का ही पूछना है ना। सिंपल, जैसे आज की क्लास में हमने एक सिंपल क्वेश्चन किया था, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, एसेंट्रिक के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं एग्जाम में आने। तो 5वां स्टेप बिल्कुल टिप्स पे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, प्राइमरी शेयर निकालो, सेकेंडरी शेयर निकालो, रिजल्टेंट शेयर निकालो, हेवीली लोडेड रिवेट फाइंड करो, स्ट्रेंथ इक्वेशन लगाओ, डायमीटर कैलकुलेट करो। बस यही है ना। तो इतना यदि समझ में आ गया तो बढ़िया। अब इसमें अभी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने लिया है, तो आपको उसमें प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप एसेंट्रिकली लोडेड के जरूर अटेम्प्ट करिए, है ना। तो उसमें अटेम्प्ट करने में क्या है ना, थोड़ी सी मान लो मैं सिचुएशन कॉम्प्लेक्स कर दूंगा। मान लीजिए मैंने एक रिवेट यहाँ ले लिया, एक रिवेट यहाँ ले लिया, है ना, एक रिवेट यहाँ ले लिया और एक रिवेट मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कितने रिवेट हैं टोटल? कितने रिवेट हैं टोटल? 4 रिवेट, है ना। 4 ही रिवेट हैं दोबारा से। इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो फाइंड कर लोगे, एक्स बार वाई बार लगा के, बड़ा आसान है। मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ गया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ आ गया, ठीक है। क्या अब आप लोग बना सकते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? मैं एक बना के दिखा देता हूँ, है ना। फिर आप लोगों को ऐसा बनाना आना चाहिए। देखो, जो प्राइमरी शियर होता है ना, वो तो बड़ा आसान है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। वो तो जैसी फोर्स वर्टिकल है तो प्राइमरी शियर भी वर्टिकल होगा, है ना। प्राइमरी शियर वर्टिकल होगा, तो हर रिवेट के सेंटर से, जैसे यहां से आपने निकाल दिया P1 डैश, यहां से आपने शो कर दिया P2 डैश, है ना, यहाँ से मैंने शो कर दिया P3 डैश और यहाँ से मैंने शो कर दिया P4 डैश, है ना। रिवेट की नंबरिंग मैंने अपने हिसाब से कर ली, रिवेट 1, रिवेट 2, रिवेट 3, रिवेट 4। अब अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं इफ इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अब मुझे सेकेंडरी शेयर निकालना है, तो बताओ सेकेंडरी शेयर की डायरेक्शन कहाँ होगी? एनी आइडिया? सेकेंडरी शेयर की डायरेक्शन बताने के लिए मैंने आपको हिंट दिया था कि रिवेट के सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जोड़ो। जोड़ दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। रिवेट के सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज्वाइन करो। ज्वाइन करने पर जो लाइन मिले उस लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। उस लाइन का क्या ड्रॉ करो? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये एंगल 90 बनना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो।
ठीक है, ड्रॉ करने के बाद ये देखो कि आपको क्लॉकवाइज की रिक्वायरमेंट है या एंटी क्लॉकवाइज की रिक्वायरमेंट है। यदि क्लॉकवाइज की रिक्वायरमेंट है तो इस तरह से एरो आएगा। ठीक है, तो ये वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे, P1 डबल डैश। सिमिलरली अब रिवेट नंबर 2 पे आ जाओ। रिवेट नंबर 2 का P2 डबल डैश किधर होगा, एनी आइडिया? फिर से वही लॉजिक लगाओ, रिवेट के सेंटर को G से ज्वाइन कर दो, कर दिया, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए हमेशा, है ना। रिवेट के सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मेरी बात ध्यान से समझो, फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत गलतियां करते हैं लोग। सबसे पहले सेकेंडरी शियर ही इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंडरी शियर में ही गलती करते हैं। सेकेंडरी शियर ड्रॉ करने के लिए रिवेट का सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दो सेंटर हैं, एक रिवेट का सेंटर, एक पूरे रिवेट सिस्टम का सेंटर है। दोनों सेंटर को ज्वाइन करो, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उसमें एरो लगाओ, वो आपकी डायरेक्शन हो गई P2 डबल डैश। ठीक है, अब थर्ड वाले केस में देखो, ये थर्ड रिवेट, फिर से वही काम करो, इसका सेंटर को ज्वाइन करो, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसमें एरो लगाओ, ये आपका हो गया P3 डबल डैश, है ना। अब वही काम रिवेट नंबर 4 पे आप करिए, इसको ज्वाइन करिए, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाइए, है ना, ये 90 डिग्री हो गया अपने आप। तो ये आपके शेयर हो गए। ठीक है, अब बताओ रिवेट नंबर 1 पर रिजल्टेंट कितना आएगा, कौन बताएगा, बोलो। R1 की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला देखो, रिवेट नंबर 1 पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो काम कर रहा है P1 डैश और एक कर रहा है P1 डबल डैश, है ना। जब दो फोर्स काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ एंगल है, तो कितना एंगल है उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में कुछ एंगल है ना। तो उस एंगल को मैं मार्क कर देता हूं, जरा सा मैं कलर चेंज कर दूं, है ना। मान लीजिए मैंने ये कलर दे दिया, तो अब इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो P1 डैश ये लाइन है, P1 डबल डैश ये लाइन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल है, और ये एंगल नेचुरली 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसे, है ना। इस एंगल को हम थीटा ज्यूम कर लेते हैं, थीटा के लिए हम इस ट्राइंगल का यूज करते हैं ABC, है ना, या ABG। ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ABG। तो ट्राइंगल ABG की हेल्प लेके हम थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। कोई भी फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा लगा दो, कॉस थीटा लगा दो, टेन थीटा लगा दो, किसी भी ट्राइंगल में थीटा निकालना बड़ा आसान होता है। तो यहाँ पे हमको साइन थीटा लगाएंगे तो इसका परपेंडिकुलर माने ये डिस्टेंस, ये क्वेश्चन में पता रहती है ना, अपॉन हाइपोटेनस AG भी को आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि रिवेट इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 y1 x2 y2 दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो डिस्टेंस क्या होती है, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर होती है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस दो पॉइंटों के बीच की। तो डिस्टेंस हमारे पास, चूंकि हमारे पास ज्योमेट्री गिवन होती है, तो उस ज्योमेट्री में ये सारी डिस्टेंस हमें पता रहती है। जब डिस्टेंस पता रहती है तो थीटा को निकालना आसान है। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, √P1 डैश स्क्वायर P1 डबल डैश स्क्वायर ट्वाइस P1 डैश डबल डैश कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90 प्लस जो भी एंगल आएगा, जो भी हमारा थीटा आया होगा उसके हिसाब से जाएगा। तो ये इस तरह से रिजल्टेंट शेयर निकालते हैं। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अभी इससे पहले जो प्रॉब्लम मैंने कराई वो थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम है, उसमें सारे एक ही लाइन में रिवेट्स हैं, है ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम भी उसका बहुत आसान है। लेकिन जब आपका सिस्टम ज्योमेट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी तो उस केस में फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस किए गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री में। अपने हाथ से फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, 3 4 5 बनाइए, बनाने की कोशिश करिए, आंसर्स मिलाइए, मैच होते हैं तब ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया है। अब ये तो मैंने आज समझा दिया, किसी दिन मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, मैं आपको स्क्रीन शेयर के ऑप्शंस दे दूंगा, तो अपना अपना डायग्राम बना के मुझे शेयर करिएगा यहाँ पर, है ना। मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा कि भाई ये डायग्राम है, ये रिवेट सिस्टम है, ये सेंट्रिकली लोडेड रिवेट सिस्टम है, आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, बना के दिखाएंगे, देन यू विल लर्न।
ठीक है, तो अभी टाइम कितना हुआ, 2:40 हो गया है। अब इसमें ऐसा करते हैं, हमें क्या करना है, क्वेश्चन तो हो चुका है जो हमने किया है अभी। एक सेकंड, मैं जरा सा इसे स्टॉप शेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप शेयर करने के बाद में मान लीजिए कि मैं आज ये बोर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बोर्ड ले लिया। ठीक है, अब इस बोर्ड में हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। अब इसके लिए एक मैटलैब प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, कैसे बनाओगे, है ना। सबसे पहले परसेंटेज लगा के अपना ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए, टू डिजाइन एंड ड्रॉ द इसेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट। उसके बाद अपनी कोडिंग आप स्टार्ट करिए एज यूजुअल, क्लियर ऑल। उसके बाद क्या करते हैं आप, CLC करते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं, है ना। अब आपको प्रॉब्लम का पूरा फ्लो पता है, कितने स्टेप थे इसके अंदर, स्टेप 1 था, स्टेप 2 था, स्टेप 3 4 5, 5 स्टेप थे। तो पहला स्टेप आज कर लेते हैं, बाकी आपको छोड़ देंगे, आपको अपने आप करने हैं, है ना। तो स्टेप 1 के लिए मैं लिखूंगा परसेंटेज स्टेप 1, है ना। स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, टू फाइंड COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करोगे बताओ, x बार y बार, ये तो पता करना है। अब x बार का क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 x4 डिवाइडेड बाई 4, यही है ना। तो आप कैसे फाइंड करोगे जरा बताओ। देखो, सबसे पहले तो आप इनपुट करा लो, है ना। x1 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू कितनी है। हमारे केस में x1 कितना था 150, नहीं x1 कितना था 0, सारे 0 थे। x2 कितना था 0, x3 था 0, x4 भी 0 था। और हमारे केस में y1 कितना था 150, y2 कितना था ओनली 50, y3 था 150, y4 था ओनली 50। सब में सेमीकोलन लगा देना, है ना। सेमीकोलन का मतलब आप जानते ही हैं, टू सप्रेस द आउटपुट। अभी हमें स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाना है, तो सभी में हमने क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, x। अब देखो, इतना लंबा कोड लिखने की बजाय, है ना, मान लो x1 x2 x3 x4, तो मैं इसको एक सिंपल वे में दिखा रहा हूं करके, x इक्वल टू 0 0 0 0, यही तो मैट्रिक्स चाहिए मुझे। अब इस x मतलब इन चारों वैल्यूज को मैंने एक मैट्रिक्स के अंदर डाल दिया। सो इट इज x1, इट इज x2, इट इज x3, इट इज x4, है ना। अब इतना लंबा भी लिखने की बजाय मैं और इसको सुपर कर सकता हूं, x इक्वल टू जीरोस, है ना। कितनी रो हैं 1, कितने कॉलम है 4, जीरोस 1 4। तो दिस इज द इफेक्टिव कोडिंग, है ना, दिस इज द इफेक्टिव कोडिंग। तो ना तो आपको ये करना है, ना आपको ये करना है, आपको ये करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। आपको x कोऑर्डिनेट्स के लिए एक मैट्रिक्स बनाना है ना, जिसके अंदर x1 x2 x3 x4 को स्टोर करना है। तो सारी वैल्यू 0 है, आपने जीरोस बना दिया। अब आप y कैसे बनाएंगे, सेकंड मैट्रिक्स बनाएंगे y कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब y कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या वैल्यू है, 150 50 150 50, यही है ना। तो आप इसको सिंपल बना दीजिए, 150 50, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है तो आपको पूरी वैल्यू लिखनी ही पड़ेंगी, 150 50 150 50, यही था। नहीं 50 50 150 ऐसे था, ये 50 है, ये 150 है, तो ये आएगा 150 50 50 150, ये आपका y हो गया। ठीक है, x देखो, अभी स्टेप 1 में केवल 2 लाइनें लिखी हैं आपने, है ना, ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको, देयर इज नो नीड ऑफ दैट, मैंने समझाने के लिए बताया। अब x हो गया, y हो गया, अब क्या निकालना है, x बार। अब x बार आप ऐसे तो लिख नहीं पाओगे मैटलैब में, है ना, बार का साइन तो नहीं लगा पाओगे, तो आपको एक अपनी तरफ से वेरिएबल बना लेना x बार, है ना, x बार x भी या जो भी आप बनाना चाहें, जैसे भी, तो x बार। अब x बार में क्या करेंगे आप, है ना, इस x मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, उन चारों का क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जोड़ लगाना है, सम करना है ना, सम करना है। तो सम के लिए सम कर देना, सम x, मैट्रिक्स का सम हो गया, बस चारों की वैल्यू ऐड हो गई। ऐड होने के बाद डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है, जितनी उसके अंदर वैल्यूज है ना, 4 वैल्यूज है तो 4 से, 5 है तो 5 से, 6 है तो 6 से,
है ना। तो अब मैट्रिक्स के अंदर कितनी वैल्यूज हैं वो कैसे पता चलता है, साइज से पता चलता है ना, या मैट्रिक्स उसकी लेंथ से पता लगता है। तो x डॉट लेंथ आप नीचे लिख सकते हैं, x डॉट लेंथ, x डॉट लेंथ। अपने आप x डॉट लेंथ का, x डॉट लेंथ की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, हमारे केस में 4 आएगी, है ना। हमारे केस में 4 होगी, कहीं पे 5 होगी तो 5, जो मतलब अपने आप एडजस्ट कर लेगा, वट एवर इज द वैल्यू। सो x bar will be sum of x divided by x dot length. Similarly y bar के लिए क्या कर सकते हैं, sum of y divided by y dot length। निकल गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, x bar भी निकल गया, y bar भी निकल गया। फर्स्ट x स्टेप इज डॉट लेंथ कंप्लीट क्या है सर? है। x डॉट लेंथ क्या है सर? x डॉट लेंथ ये है, देखो जैसे हमारा x मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली 0 0 0 0 है ना। इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, मैट्रिक्स में कितनी वैल्यू जो स्टोर है, 4 वैल्यू जो स्टोर है। तो x डॉट लेंथ का मतलब है, x डॉट लेंथ विल गिव मी 4, ठीक है। मतलब कोई किसी मैट्रिक्स में जितनी वैल्यू होती है, किसी वेक्टर में जितनी वैल्यू होती है, तो उस वेक्टर की लेंथ को देता है। एक नया फंक्शन है ये, मान लीजिए आपके लिए। तो x डॉट लेंथ, y डॉट लेंथ, z डॉट लेंथ, है ना। z डॉट लेंथ करने से z वेक्टर के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो रिट्रीव हो जाएंगी। मान लीजिए मैंने लिखा z इक्वल टू, ठीक है, 1 विथ इंक्रीमेंट ऑफ 2, लास्ट इज 20। बताओ z डॉट लेंथ में मुझे क्या मिलने वाला है, फर्स्ट वैल्यू इज 1, लास्ट वैल्यू इज 20 विथ इंक्रीमेंट ऑफ 2। हाँ, कितना मिलेगा, 11 7 नहीं 11 है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यू हुई, है ना, 10, yes, sir. है ना। तो z डॉट लेंथ में मुझे क्या देगा ये, 10, इट विल गिव मी 10। बात समझ में आ गई। तो इसलिए मैंने x डॉट लेंथ लिखा है, क्योंकि मुझे लेंथ से ही तो डिवाइड करना है, 4 है तो 4 से करना है, 10 है तो 10 से करना है, वट है ना। तो कहने का मतलब देखो, इसी काम को यदि मैं लंबे तरीके से करता, x1 अलग डिफाइन करता, x2 अलग डिफाइन करता, x3 अलग करता, x4 अलग करता, और फिर x बार इक्वल टू लिखता x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे लिखता, तब भी तो आंसर वही आता। लेकिन अब ये प्रोग्राम स्पेसिफिक हो गया 4 वैल्यूज के लिए, है ना। लेकिन ये मेरा एक जनरलाइज प्रोग्राम है ना। मान लीजिए इस 4 को भी मैं n लिख दूं, n, और n मेरा क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स है। तो मैं अपने प्रोग्राम को कितना ज्यादा जनरलाइज बना सकता हूँ, उतना ही मेरा प्रोग्राम इफेक्टिव माना जाएगा, है ना। और प्रोग्राम जनरलाइज कैसे बनता है, कुछ लॉजिक के साथ जनरलाइज बनता है, कुछ फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं प्रोग्राम। और जब तक आपको प्रोग्राम का फ्लो नहीं, मतलब क्वेश्चन का फ्लो नहीं पता है, तब तक तो आप उसे जनरलाइज नहीं बना सकते, ठीक है। अब आगे भी इसमें आएगा R1 R2 R3 R4 सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसको भी हम देखना एक ही स्टेप से कैसे R1 R2 R3 R4 फाइंड करेंगे, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा बड़ा 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, ओनली 1 लाइन में हमारा काम हो जाएगा। तो अब मैंने तो जस्ट आइडिया दिया है, आप लोग इस प्रोग्राम को बनाइए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा ये जनरलाइज फॉर्म में बने। और हमारा आंसर जो कितना आया है रिवेट का 14.38, है ना। तो मैटलैब भी आपको आंसर निकाल के देगा, अपना आंसर और अपना थ्योरेटिकल आंसर और अपना मैटलैब का आंसर दोनों आपके मैच होने चाहिए, है ना। यदि मैच नहीं हो रहे हैं, इट मींस आपके प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कोई एरर है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम तो रन कर रहा है, कोई एरर नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे, है ना। तो कई तरह की एरर होती हैं, एक तो सिंटैक्स एरर होती हैं, है ना, जिसमें पता लगता है कि कहीं कॉमा छूट गया, कहीं कुछ छूट गया, तो प्रोग्राम मैटलैब खुद ही बता देगा कि यहाँ पर सिंटैक्स एरर है। कभी कभी लॉजिकल मिस्टेक्स होती हैं, तो उसको मैटलैब खुद नहीं पकड़ सकता है ना। लॉजिकल मिस्टेक का मतलब प्रोग्राम तो रन करेगा, लेकिन रिजल्ट्स कुछ उल्टे सीधे आएंगे आपके, है ना, जो प्रैक्टिकल रिजल्ट से थ्योरेटिकल रिजल्ट से मैच नहीं करेंगे। तो इन दैट केस उस लॉजिकल एरर को पकड़ना थोड़ा सा कठिन काम रहता है। तो उसके लिए आपको एक एक स्टेप पे जाना पड़ेगा कि आखिर कहाँ पर मिस्टेक हुई है। अपने पूरे प्रोग्राम को आप सेक्शंस में डिवाइड करके कर सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट एक आपको आइडिया दिया है प्रोग्राम का, आप लोग स्वयं बनाए, बना लेंगे आप लोग।
सर हाँ बोलिए। सर एक प्रोग्राम तो मतलब स्पेसिफिक हो गया ना किसी एक क्वेश्चन के लिए। नहीं, एक क्वेश्चन के लिए क्यों हो गया? सर 4 रिबिट्स हैं, 5 आते हैं सर वो। डिफाइन कर दो। एक सेकंड, आप ना आप मत करो कि 4 है, आप n इक्वल टू, एक सेकंड देखिए, मान लीजिए फॉर्मेट में मैं यहाँ इसको क्लियर कर देता हूँ, या ठीक है, चलो आपने लिख दिया स्टेप 1 पे है मान लो, है ना। अब आपको 4 डिफाइन ही नहीं करना, आपने कहा n इक्वल टू इनपुट और यहाँ आपने डाल दिया एंटर नंबर ऑफ रिवर्ट्स, हाँ यस सर, अब ठीक है, यस सर। है ना। अब जनरलाइज हो गया प्रोग्राम, कितने रिवर्ट 4 हैं, हमें नहीं पता कितने रिवर्ट हैं, हाँ वो पूछेगा सर अब। यूजर वैल्यू देगा उस हिसाब से हो जाएगा। हाँ यस सर, यस सर, यस सर, फिर एंड डाल देंगे डिवाइड बाय एन। प्रोग्राम कैन बी मेड जनरलाइज्ड, तो कोशिश यही करिए कि आप उसे अब जनरलाइज की भी लिमिट होती है। यस सर, यस सर। जितना ज्यादा आप जनरलाइज करते जाएंगे उतना ज्यादा प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड भी होता जाएगा, साथ में थिंकिंग रिक्वायर्ड है। मतलब वैसे तो इजी होगा, नंबर ऑफ लाइंस तो कम हो जाएंगी, लेकिन समझने के लिए जो लॉजिकल है वो बढ़ जाएगी, उसको हर कोई नहीं समझ पाएगा, है ना। आपके सिंपल प्रोग्राम को, सिंपल फ्लो को तो कोई भी देखेगा, समझ लेगा, बट यदि आपने प्रोग्राम जनरलाइज कर रखा है, वेरिएबल्स प्रॉपर डिफाइन, तो उसको वही समझ पाएगा जिसको मैटलैब के सिंटैक्स या थोड़ी सी उसकी प्रोग्रामिंग नॉलेज बेटर है ना, दैट ही कैन अंडरस्टैंड। बाकी आप यहाँ पे हेल्प भी दे सकते हैं, प्रोग्राम को समझने के लिए कुछ रिमार्क भी दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले तो फर्स्ट स्टेज पे जनरलाइज बनना बड़ा मुश्किल होता है। फर्स्ट स्टेज पे आप इसको प्रोग्राम स्पेसिफिक बनाइए कि आपको तो इसी प्रोग्राम का प्रोग्राम बनाना है ना पहले, और उसके बाद जब एक बार बना लेंगे आप, देन यू विल बी एबल टू जनरलाइज इट, तब आप ज्यादा जनरलाइज कर पाएंगे। तो अब उसमें भी लिमिट होगी, कितने परसेंट जनरलाइज कर पाए, 30%, 50%, 70%। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा जनरलाइज हो जाए, और उसको बना लीजिए और आंसर मैच कर लीजिए। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा हो जाएगा? इससे पहले हम कर चुके हैं एक तो गुडमैन थ्योरी का, और एक हम कर चुके हैं स्टैटिक फेलर थ्योरीज का। 2 एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, या और भी कर चुके हैं कोई? बताइए हम लोग। दो अभी हो गए, तक हमने 2 किए हैं ना, एक तो हमने किया है सर 2 कर गुडमैन, लिए सर। एक गुडमैन सोडरबर्ग गर्बर का किया है, प्लॉट किया है, थ्योरीज ऑफ फेलियर। और एक थ्योरी फेलियर 5 थ्योरी को प्लॉट किया था 2, और तीसरा ये हो गया इसेंट्रिकली लोडेड डेरिवेटेड। यस सर। ठीक है, बना लेंगे आप प्रोग्राम, क्लास एंड करें। सर एक कोई डाउट है। हाँ बोलिए। सर जैसे वैल्यू जब डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तो हम उसे एक उसमें मैट्रिक्स में कैसे फॉर्म करेंगे? मैट्रिक्स इसमें मैटलैब में जब हम वैल्यूज यूजर से डिफरेंट मांगेंगे ना सर हम इनपुट, तो वो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे उसे इनपुट कराएंगे सर? वो तो डिफरेंट डिफरेंट बार देगा। यूजर देखो, जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू इनपुट एंटर x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल रिवेट्स, लिख दिया मैंने। यूजर को ये मैसेज आएगा, जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो एक ऐसे बॉक्स जनरेट होगा, उस बॉक्स में ऊपर हेडिंग में लिखा होगा एंटर x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑल रिवेट्स। ठीक है, अब यूजर ने लिखना शुरू किया, मान लो उसने लिखा 12 स्पेस 13 स्पेस 14 स्पेस 15 स्पेस 20 स्पेस 25 लाइक दिस, है ना। तो ये जो वैल्यू यूजर ने दी, अब इसको उसने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। तो यदि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब मैटलैब अपने आप समझ जाता है कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक वेक्टर है। तो अब ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 1/6 हो गया ना, ये 1/6 का ये जो वेक्टर है, ये किसको असाइन हो रहा है? ये x को असाइन हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ x वेरिएबल दे रखा है। तो यूजर कैन गिव द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आल्सो, ओके नो प्रॉब्लम। स्केलर के फॉर्म में भी इनपुट दे सकता है, वेक्टर के फॉर्म में भी इनपुट दे सकता है, और मैट्रिक्स के फॉर्म में भी इनपुट दे सकता है ना। मैट्रिक्स के फॉर्म में देने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए मैट्रिक्स के फॉर्म में इनपुट लेना है, एक m वेरिएबल है, और तो यूजर को इनपुट देना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएगा 1 2 3 सेमीकोलन 4 5 6 सेमीकोलन, जो भी लिखना है 77 78 79, ये हो गया। तो इसका साइज 3/3, 3/3 का मैट्रिक्स किसमें चला गया? m में चला गया। m एक ऐसा वेरिएबल हो गया जो कि 3/3 का मैट्रिक्स है। x एक ऐसा वेरिएबल हो गया, एक ऐसा वेक्टर हो गया जो 1/6 का वेक्टर है ना। यहाँ पे n में यदि आप केवल 4 दे रहे हो, तो यहाँ पे n एक ऐसा वेरिएबल है जो कि स्केलर है अपने आप में, क्योंकि उसके अंदर एक ही वैल्यू है। तो जैसा दोगे वैसा वेरिएबल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है मैटलैब में, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताइए। तो क्लोज करें फिर आज की लैब। Yes, sir. ओके, स्टॉप शेयर करता हूँ। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।